नमस्कार। किसी भी राज्य के बारे में आखिर क्या आकलन करना है, ये उसकी राजधानी से पता लग जाता है। गुवाहाटी जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया इसको कहा जाता है। और बहुत ज़्यादा जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलो, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलो, तो सड़कें बड़ी बड़ी चौड़ी दिखाई देती हैं, होटल्स दिखाई देते हैं, लेकिन सड़क के माध्यम से जब आप लोगों तक पहुंचते हो, क्या वाकई विकास वहां तक भी पहुंचा है या नहीं, और ये मुद्दा इस चुनाव में है या नहीं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम गुवाहाटी पर भी चर्चा करेंगे और विकास पर भी बात करेंगे कि क्या वाकई में ये सिर्फ वादा दावा है या कुछ हुआ भी है। बहुत बहुत आपका स्वागत है डीडी कॉन्क्लेव में बिजुली कलिता मेधी जी, जो कि सांसद भी हैं गुवाहाटी से, पेशे से आप शिक्षिका भी रह चुकी हैं, रोज़गार की भी बहुत बात करती हैं, और इनके बारे में एक ख़ास बात ये भी है कि 42 लाख कार्यकर्ताओं के बीच में से इनको चुना गया था। तो मतलब बहुत ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता से लेकर यहाँ तक का इनका सफ़र एक लंबा रहा है। तो जुझारू आप रहीं कलिता जी, लेकिन क्या वाकई में जो अपने कंस्टिट्यूएंसी के मुद्दे हैं वो भी उठाती हैं? सभी को नमस्ते। और जो आपने बोला कि out of half of the voters and half of the women karyakartas, means among all the karyakartas, half are women karyakartas. So among them, I am one who has got the opportunity to fight the election from a prestigious Lok Sabha constituency, that is Guwahati. Among 14 constituencies, Guwahati is the most prestigious, I can say, because here you will find the capital of Assam, and this is the gateway to Northeast. So, यहाँ से खुद को एक प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत ही प्राउड फील होता है। और हम लोगों का इलेक्शन 24 को हुआ था, और 24 से अभी तक 1.5 साल हमारा ख़त्म हुआ। तो इन 1.5 सालों में हमने पार्लियामेंट में गुवाहाटी के बहुत सारे मुद्दे, जो मेरे लोकसभा में 10 LAC कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जो 5 are from the metro Guwahati city and other 5 are from rural. There are 3 districts: Guwahati Metro and Kamrup Rural and Gwalpara. So I have been asking various questions regarding the 10 LACs, but I think you have seen that the development which has been done in the last 10 years, and especially 5 years under the leadership of our very active and very dynamic Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, you have seen that the whole scenario of Guwahati city has changed in these 10 years and especially in these 5 years. ये बताइए कि मुद्दा है क्या इस चुनाव में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तो ये मानकर बैठी है कि भाई हम सत्ता में आ रहे हैं। अब जब ऐसी बात मन के अंदर आ जाती है तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। विकास की बात हो रही है, लेकिन क्या विकास पहुंच पा रहा है गली गली तक? ज़रूर आप लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि हम लोगों का मुद्दा ही है डेवलपमेंट, और ये नहीं है कि हमारा पार्टी का मुद्दा है डेवलपमेंट। People are saying about the development. If you go in any remote areas nowadays, then we no need to say that what is going on. People, they themselves say, because the changes they have seen in their areas, the roads, the everything, the infrastructure, the schools, the colleges. So they have seen the even the Anganwadi. You will see that before Anganwadi used to be a very tuta-futa, like that type of school where the little kids, they used to come. Now we will see the model Anganwadis, and including that the schools, the colleges, the roads, the water provision. So you will see that people have got everything within these 10 years. So we no need to say that what development is going on. People themselves, they say. बिजुली जी, गुवाहाटी के डेवलपमेंट से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आपके आने से पहले हमने देखा कि बहुत सारे यहाँ जो युवा बैठे हुए हैं वो तो फ्लड्स से परेशान हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, लगभग बारिश हो भी रही है गुवाहाटी में,
तो आपको लगता है वो आप सुधार लेकर आ पाए? देखिए, since we all know that Guwahati is an unplanned city and it is surrounded by hills all around. So the water which comes from the hills during the rainy season, then it gets stuck in the bottom, which is the city. But since I am born in this city, so I can say that before the water logging used to be for 3 days in a place. But now this water goes out within 1 hour. So we have seen a lot of change. But you will see that the very young people who have not seen those days cannot feel the change actually in these days, because within 10 years or 20 years, because we have seen those days that for 3 days water didn't go out from any area, but now water goes out within 1 hour. So this Within is the 1 change. hour? Yeah, within 1 hour the water goes out. ओके, तो We फिर are- तो आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक किया अगर 1 घंटे में, लेकिन यहाँ तो लोगों की राय कुछ और थी कि मतलब कई कई दिनों तक पानी भरा रहता है। नहीं नहीं, देखिए ऐसे अभी पहले तो ऐसा होता था कि पूरा सिटी में ऐसा होता था। अभी 1-2 ऐसा एरिया है जहाँ पानी थोड़ा टाइम लगता है पानी निकल जाने तो में। ये कब तक ठीक होगा? क्योंकि आपके अगर हम घोषणा पत्र की बात करें या वादों की बात करें तो वादों में सिर्फ दूसरे मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे तो ये है ना कि उनकी गली में पानी है, भर रहा है या नहीं भर रहा। हाँ, देखिए मैंने बोला ही है कि अभी पूरा गुवाहाटी में 2 या 3 ऐसा जगह है जहाँ पर अभी तक हम वो करने में अभी तक फुल 100% करने में हम सफल नहीं हुए, लेकिन अभी ऐसा एक प्लानिंग हो गया है कि वो भी बहुत जल्दी वो भी मतलब पूरा काम हो जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। क्योंकि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में ही बताया, पेशे से आप शिक्षिका भी रही हैं। दूसरा मुद्दा आता है जिसे आपका विपक्ष जो है मुद्दा बना रहा है बड़ा, कि बेरोजगारी पूरे राज्य में चरम पर है। आपको क्या लगता है कि हाथ में डिग्री है युवाओं के, क्या उनके हाथ में नौकरी भी है? देखिए जो अपोजिशन है, they don't have any other agenda, so they have seen everything, but since they need to say something, so they are saying, because you see for last election, in our manifesto, our party have given that within 5 years we will give employment to 1 lakh youth. But under the chief minister, under our dynamic chief minister, our government has given employment to 1,65,000 youth. And not only that, not only employment, we are giving 2 lakhs to every 2 lakh youth so that they can do something in their life, they can start a business. And this time, in our manifesto, we have declared that we are going to give employment to 2 lakh youth, and we are giving 2 lakh as an aid to 10 lakhs youth, so that they can do something and they can start a business of their own, and they can lead a very nice and a very good life. लेकिन क्या ऐसा कोई इस बात की कोई गारंटी है कि यहाँ से कम एसएम से लोगों को, बच्चों को, युवाओं को बाहर ना जाना पड़े नौकरी के लिए और आप यहीं पर उनके लिए कुछ ऐसा प्रबंध करें? हाँ, देखिए वो तो बहुत हुआ है, क्योंकि अभी आप लोग देखे ही होंगे कि सेमीकंडक्टर अभी आ गया है और वो अभी बन के तैयार होने में, मतलब इन द वे टू फिनिश and way to start the industry. So in this industry, minimum 30,000 youth will get a job. And you have seen that our government has organized that Advantage 2.0, where you have seen that many industrialists, including Adani, Ambani, and from all over the globe, you can say, that they have come here and they have promised to start their industries here. And many of them have started. So we are hoping that in the coming days, our youth, they don't need to go out for employment, and they will get employment here. They will stay in their house and they will
work in their own place. आपने अडानी अंबानी का नाम लिया, उसमें एक और नाम भी जुड़ गया अब, पतंजलि। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने तो पूरे असम को अडानी अंबानी और पतंजलि को बेच दिया है और बस खेल करप्शन का चल रहा है यहाँ। देखिए, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो कोई अगर अच्छा काम करे तो उसमें तो उनको करप्शन ही दिखेगा ना, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो what good things we are doing, because you can see that now many hospitals they are coming and building many hospitals here, where not only that our people will get good treatment, but our youths will get employment in those hospitals. Many industries are coming where not only that we will get a very good market, but our youths will get engaged in those industries. Now, since they have ruled for 70 years and they were unable to do all those things, so since now they are thinking that why we didn't do all these things, so now they are seeing that only corruption, only they have, they only know that if we have to say something, then we can say that, yeah, corruption is going on, they are doing corruption. So, because I think that we don't need to matter. We don't need to put our legs in those things, what the oppositions are saying, but we need to listen to what the common people are saying, because common people are with Narendra Modi today, common people are with Dr. Himanta Biswa Sarma today, because common people have full faith on Modi ji and our very honorable Dr. Himanta Biswa Sarma. बिजुली जी, आपके जैसी जो मैंने कहा कि 48 लाख कार्यकर्ता जिसमें विमेन भी थी, उनमें से आपको चुना गया, नीचे से आप ऊपर तक उठ करके आई। आपको लगता है कि जो कांग्रेस से या बाकी बाहरी जो पार्टियों से लोग आते हैं, उनको आते के साथ ही तुरंत टिकट मिल जाता है बीजेपी से? तो जो आपके अपने कार्यकर्ता हैं जो इतने सालों से बीजेपी में प्रतीक्षा कर रहे होते हैं चुनाव की कि भाई चुनाव आएगा तो हमें टिकट मिलेगा, उनके साथ जाती होती है? देखिए, जब एक बहुत बड़ा पार्टी होता है, अभी भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है, और इस पार्टी में मैं एक एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मैंने एकदम ग्रास रूट से पार्टी का कार्यक्रम किया हुआ है। पार्टी का मैंने बहुत दायित्व लेके मैं ऑल असम महिला मोर्चा की 2 टर्म्स का मैं प्रेसिडेंट रही हूँ। मैं एकदम ग्रास रूट से, मैं काउंसिलर भी रही हूँ। मैं वार्ड का इलेक्शन मैंने लड़ी, फिर मैं डेप्यूटी मेयर बनी, फिर मैंने 2 टर्म्स महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट का मैंने दायित्व संभाला, फिर मैं पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट रही 2 टर्म्स के लिए। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे साल मैंने पार्टी के लिए काम किया। फिर हमारे पार्टी में एक ऐसा है कि हमको मांगना नहीं पड़ता। जिस दिन मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ था तो मैं दूसरे कैंडिडेट्स का मैं जो असेसमेंट होता था वो कर रही थी, और अचानक मुझे एक फ़ोन आता है कि मुझे टिकट दिया गया है, और वो भी गुवाहाटी जैसा एक प्रेस्टिजियस सीट से। तो पार्टी में ऐसे होता है, लेकिन कभी कभी, और आप देखिए हमारे अभी एक सीसीबोर गांव बोल के एक नया कंस्टिट्यूएंसी आफ्टर डिलिमिटेशन, और वहाँ जो हमारे कैंडिडेट दिया गया है वो जिला परिषद की एक मेंबर है, और जो बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही ग्रास रूट से है, मतलब बहुत अच्छे कार्य करता है। तो उनको भी पता नहीं था कि टिकट मिलेगा उनको, और उनको बोला गया है कि उनको लड़ना है इलेक्शन। तो ऐसे ज़्यादातर होता है। लेकिन अब देखिए कि एक इतने बड़े पार्टी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अगर एक बहुत बड़ा नेता अगर कोई आना चाहे तो उनको भी कभी एंगेज करना पड़ता है, और वो हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता है सब लोग वो मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ 126 सीट्स इफ़ यू सी देन यू विल सी केसेस लाइक दैट 1 or 2 ओनली। एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ? एंटी इनकम्बेंसी एकदम नहीं है, क्योंकि आप देखिए अगर आप पब्लिक के बीच जाएंगे तो आप लोग तो जरूर गए होंगे। आई थिंक यू ऑल हैव वेंट बिकॉज योर रिपोर्टर्स आर गोइंग ऑन द ग्राउंड मोर देन आस, आई थिंक सो, बिकॉज
the people who don't speak means in front of us, they speak in front of you all. So you all will know better than us. People are eagerly waiting to vote for BJP, for NDA, because they want that Dr. Himanta Biswa Sarma should become the Chief Minister once again. And because they have, again, I can say that they have full faith in our Chief Minister and our leader. ये जो आपने बात कही, मैं इसी से जोड़कर सवाल पूछती हूँ बिजुली जी, आपको लगता है कि क्योंकि सामने ऑपोजिशन में एक ऐसी पार्टी है जिसमें अंदर भी थोड़ी सी टूट पड़ी हुई है, जिनके पास आप कह रही हैं कि मुद्दे नहीं हैं, उनके पास कोई क्लिक करने वाला मुद्दा नहीं है, मतलब वीक ऑपोजिशन की वजह से आपको फायदा मिल रहा है या काम की वजह से? क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे जो गिनाए जा रहे हैं वो तो है ना अभी भी, और 10 साल एक लंबा समय था उनको ठीक करने के लिए। देखिए, पहली बात, हम ये नहीं सोचते कि ऑपोजिशन वीक है इसीलिए लोग हमको सपोर्ट करते हैं। हमारा काम अच्छा है, हमारा पार्टी ने बहुत एक प्लानिंग के साथ, एक विजन के साथ काम किया है, क्योंकि बीजेपी एक दिन या 2 दिन में पावर में आने वाली पार्टी नहीं है। फ्रॉम 1980 the party has worked a lot. The party has worked a lot to come in this position in center and even in the states. So अभी जो ऑपोजिशन का बात है, ऑपोजिशन का जो लीडर है अभी आसाम में गौरव गोगोई, तो गौरव गोगोई ही इज़ अ parliamentarian, he is a member of parliament, he is the deputy leader of opposition, and as well as he has taken the surge of president of the opposition party, that is Congress. Now, it is his discredit that he couldn't keep the party intact, he couldn't keep his leaders with him. So, I think he don't have a vision, he don't know what he have to do, because if he wants to do work in the center, if he wants to be a parliamentarian, then he should do his duties there. Otherwise, if he wants to be the leader of the opposition, he have to do his work there. And if he wants to be the president, then I think he should have that much of capacity that he should keep his leaders with him, so that not a single member, not leaders, I think that not a single member, he shouldn't let a single member to go out of the party. But on the other hand, his leaders, who are the Tolstoy leaders, so they are going out of the party. बिजुली जी, आप क्योंकि शिक्षिका रही हैं, बच्चों से आप सवाल पूछती होंगी ना सीधे सीधे कि एक लाइन में जवाब दो। मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगी, आप अपना मतलब सच्चाई के साथ, मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे। जरूर जरूर। 10 साल में कौन सा ऐसा एक वादा है जो आपको रिग्रेट है कि सरकार नहीं पूरा कर पाई? देखिए, ऐसा तो कोई वादा मुझे नहीं लगता है एक भी नहीं है। नहीं, सरकार ने जितने भी वादे किए हैं उससे ज्यादा किया है। घुसपैठ क्यों नहीं खत्म हो पाई? नहीं, देखिए, घुसपैठ असम में खत्म करने के लिए our chief minister is the only person who is working in this field. लेकिन 10 साल में हुआ क्या? अपडेट क्या है? 10 साल में आप लोगों ने देखा ही है कि अभी तक जितने भी हमारे सत्र है, जितने भी हमारे रिलीजियस प्लेसेस है, उनमें जितने भी लोग थे उनको अभी हटाने का काम हमारे सीएम शुरू किया है। और इससे पहले सभी ने उनको वोट बैंक करके यूज़ किया है। सो our chief minister is the first person who is trying to work on this. बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत आपको क्या लगती है, और विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है? बीजेपी का सबसे बड़ा ताकत है जो हमारे संगठन है, क्योंकि हमारे संगठन एक ऐसे मोटो पे चलते हैं कि हम नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, वो मुद्दे को लेके हम चलते हैं कि हमको राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है, और पार्टी जो डिसीजन लेती है वो हम सबका डिसीजन होता है। और इसमें कोई ऐसा नहीं सोचते हैं कि पार्टी के ऊपर कोई सोचता नहीं है, और पार्टी जो डिसीजन लेता है। विपक्ष की ताकत, लेकिन विपक्ष की ताकत, विपक्ष के पास तो अभी ताकत नहीं है, उनके पास सिर्फ वीकनेस है,
सिर्फ वीकनेस, कोई Yeah. एक चीज तो होगी नहीं ना। नहीं, उनके पास अगर ताकत होती तो आज जो मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस द आपको क्या लगता है उनको क्या 0 सीट आने वाली है? कुछ सीट तो आएगी विपक्ष को। नहीं, देखिए अभी उनका सीट आएगी, लेकिन उनका सीट कहाँ से आएगी? जहाँ पर ये घुसपैठिया लोग जिसको वोट बैंक करके वो लोग चला रहे हैं, जहाँ पर वो मेजॉरिटी है उसमें से उनका सीट आएगा। तो वो सीट हम जो जनरल पब्लिक जो जैसे सोचते हैं उसमें से एक भी सीट उनके पास नहीं आएंगे, जिसमें गुवाहाटी की एमपी के नाते आप अपने आप को कितने नंबर दे रही हैं? आपको लगता है आपने जो वादे किए अपनी जनता से गुवाहाटी की एमपी बनते वक्त वो पूरे कर लिए? देखिए खुद से खुद का नंबर तो कोई मतलब जो मूर्ख होगा वही देगा खुद को नंबर, क्योंकि हमको तो नंबर पब्लिक देंगी जब हमारा 5 साल ख़त्म हो जाएंगे। अभी हमको 1.5 साल ख़त्म हो गए हैं और 1.5 साल में हमने जितने बोले थे हम सोचते हैं कि हम उससे थोड़ा ज़्यादा ही हम कर पाए हैं। अब अगर 5 साल ख़त्म होने पर हम देखेंगे कि लोग हमको कितना नंबर देते हैं। गुवाहाटी से कोई है यहाँ पर या कोई सवाल पूछना चाहें अपनी सांसद से? हाँ आप। Good evening, ma'am. I am Santushti from Cotton University. Ma'am, as you said that development in Guwahati has led to a better drainage system which leads to flood water receding in an hour. Ma'am, but the road which I use, which leads to my home, faces so many frequent pipe bursts that it is waterlogged without rain. And street lights were installed last year or a few years back, but it already doesn't work in the streets. And there are many such streets, bylanes and roads in Guwahati which face this condition. So my question is Guwahati really can Guwahati really be called developed if these basic issues are which we face? Thank you for your question. A very young girl from Guwahati. उन्होंने बिल्कुल वही बात की। देखिए आप ही की कंस्टिट्यूएंसी से देखिए, कि ना तो रोड पर लाइट जल रही है उनकी और ना वहाँ पर फ्लड का पानी नहीं, खत्म हो रहा है। देखिए एक बात है कि हमारे गुवाहाटी का एक बहुत बड़ा बात है कि जो अवेयरनेस, क्योंकि इन्होंने अभी हमको बोला ये बात, और सब वार्ड में हमारे यहाँ 60 काउंसिलर्स होते हैं, जीएमसी का 60 काउंसिलर्स है। सो आई लाइक टू सजेस्ट हर दैट सी ऑल्सो इन हर वार्ड ऑल्सो देयर इज अ काउंसिलर, यस और नो? सो दिस the connectivity of this electricity. So if you inform the councillor, then I think it will be solved within a day. So from which ward you are? Ward number 23. I live in Silpukuri. Ward number? 23. 23. Ward number 23. Yes. So she doesn't know her ward. So you all should be aware of that, because बच्ची है स्कूल कॉलेज में पढ़ती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? Ma'am, third year. अच्छा देखिए थर्ड ईयर। No, see, there is a person who is legally means you should inform that person. So it is a very small means it is a very that if you can say that if you connect the proper person, then it is a very small problem. But if you cannot contact that person, then it is a big problem. So in that area, now since I have known that, so I can just in one phone, I can just contact to your councillor, and tomorrow your problem will be solved from 23, ward number 23. Yes or no? So you should you should inform the problem to the proper channel. If you don't inform you don't inform your problem in the proper channel, then your problem will not be solved. So most of the people in Guwahati, you will see that in elections, the percentage of votes are also less compared to the other areas. Why? Because most of our people in the cities, they think that if we discuss in the drawing room,
then the problem gets solved. नहीं भाई, हम तो अपने मंच के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से अपील करेंगे कि एक एक वोट कीमती है, सब अपने घर से निकले, ड्राइंग रूम छोड़कर, और पहले तो वोट डालें सुबह सबसे पहले निकलकर, उसके बाद ही नहीं अभी हमको क्या करना पड़ता है, हमको सिर्फ वही अपील करना पड़ता है गुवाहाटी में कि आप लोग आए। और अभी तो बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन पहले तो ऐसा होता था कि 50 के ऊपर जाता ही नहीं था vote percentage. So people think that today is a holiday, so let us take our children to the resort and let's celebrate the holiday. But nowadays, people, they became means more aware because they are all educated. They know everything. But means the day which is for casting the vote, people used to celebrate it as a holiday. Yes or no? कि हम जाएंगे वोट डालने, कोई भी एक भी वोट जो है उसको वेस्ट नहीं जाने देना है। ऐसा ना हो कि आप लोग ना जाए, तो वोट डालेंगे, लेकिन वोट काम भी होना चाहिए फिर। वो तो है, मैंने बोला है कि प्रॉपर चैनल में आप प्रॉब्लम बोलेंगे तो तुरंत आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आप बोलेंगे नहीं तो प्रॉब्लम सोल्व कैसे होगा। अंत में चलते चलते कलिता जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, आप क्या मान रही हैं? अभी देखिए दिल्ली में भी सेशन शायद जल्दी ही हो और उसमें महिलाओं की भागीदारी को और ज़्यादा, विमेन रिजर्वेशन को सीटें बढ़ाने की बात चल रही है। आपको लगता है कि असम में महिलाएं जो हैं उनको राजनीति में जितना आना चाहिए वो आ पा रही हैं, और खासकर इस चुनाव में? देखिए, वुमेन का जितना भी भागीदारी होना चाहिए एक्चुअली वो कंपैरेटिवली कम है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और वी आर होपिंग दैट व्हेन दिस 33% रिजर्वेशन विल कम, देन आवर वुमेन विल गेट चांस टू means to fight these elections, and people will give more response to this women leaders, and they will get an opportunity to take part in the decision making policy. ये जो अस्मिता की बात हो रही है, चुनाव के बाद बच जाएगी ना अस्मिता? मतलब सारा चुनाव ही इसी अस्मिता पर हो रहा है। हाँ, वो तो है, लेकिन हम बोलते ही है कि in the coming elections, because these elections now it will complete, so in the coming elections hope that the number of women candidates increase, and the women who are working in the for the betterment of the party, who are working for the people in the grassroots level, because in the panchayat we have 50% reservation, in the municipal corporations we have 50% reservation. So when this 30% reservation comes, then hope they will get the opportunity to. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बेबाकी से इस बात को माना कि अभी जितनी महिलाओं को आगे आना चाहिए, अभी काफ़ी लंबा रास्ता है वो तय करने में, थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन आप एक उदाहरण भी हैं, क्योंकि इतने 48 लाख कार्यकर्ताओं में से अगर आपको चुना जाता है, फुलफिल करें लोगों की आप अपेक्षा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।